Hello, everyone, and greetings to all of you. Let us begin with today's Indian Express analysis of 25th of August. Today, we will be having a brief analysis about various national and international events which will be directly helpful in your examination, prelims, or mains stages. BRICS expands from 5 to 11. PM says this sends message to all. जैसा कि हम जानते हैं साथियों, ब्रिक्स जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, इसके एक्सपेंशन को लेके इंडिया का विजन हमेशा से रहा है। इंडिया ने हमेशा से ये कहा है कि ब्रिक्स को सिर्फ चंद राष्ट्रों के बीच सीमित ना रखें। जितना एक्सपैंड करेंगे उतना बढ़िया फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जितने नए राष्ट्र इसमें जुड़ेंगे आके साथियों, उतना ही इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। कौन से राष्ट्रों को जोड़ा गया है? सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, इजिप्ट, एथियोपिया, अर्जेंटीना will become part of BRICS from 1 January 24. There are about 23 countries which have formally applied so far for membership of the grouping. Very good. Prag loses to Carlsen, misses top chess title but leaves his mark. Are Pragnananda and Magnus Carlsen during the tiebreaker of the FIDE World Cup final in Baku. ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि प्रज्ञानंद बहुत ही अच्छे से वर्ल्ड नंबर 3 को डिफीट करा, वर्ल्ड नंबर 2 को डिफीट करा, और जो वर्ल्ड नंबर 1 है, रैंक नंबर 1 मैग्नस कार्लसेन, इनको टाई कराना पड़ा, बार बार मैच को टाई कराना पड़ा। हालांकि ये जीत गए बाद में मैग्नस कार्लसेन, मगर बहुत बड़ी बात है कि एक 18 साल के भारतीय के लिए विश्व गुरु चेस विश्व चैम्पियनशिप में एक बड़े लीडर को एक बड़े खिलाड़ी को हराया। वेरी गुड। नेशन इज प्राउड ऑफ प्रज्ञानंद। Uncharted waters. For now, both the hope and fear about BRICS appear misplaced. It's a forum in search of coherence. There are times when a brand acquires a symbolism that far exceeds its real significance. Consider the global political excitement surrounding the BRICS. On the eve of just concluded Johannesburg summit, many in the global south have seen the summit as an opportunity to build a new platform to address the economic concerns after COVID-19 pandemic and the war in Ukraine. If there were fears in the West about the BRICS upending the post-World War II global order, both the hope and the fear appear misplaced. All the pre-summit hype about a common BRICS currency to replace the dollar, for example, ended in tame statements about trading in national currencies, which are in any case. देखिए, हम जानते हैं कि पहले बहुत बढ़ चढ़ के बोला जा रहा था कि डॉलर को रिप्लेस करेंगे, है ना, डॉलर को रिप्लेस करेंगे, सिस्टम हिला देंगे। तो अभी इस मीटिंग में वाली बात तो नहीं करी, मगर हाँ ये कह दिया कि आप लोग की जो भी नेशनल करेंसी है आप इसी में डील करो भाई, है ना। Although it may not shatter the current global order, BRICS brand has attracted many countries that went to demonstrate their strategy, autonomy, and stand up to the Western pressures. The clamor to join the BRICS became intense as 22 countries applied for membership. The Johannesburg summit took a major decision on expanding the forum.
Argentina, Egypt, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia. Argentina, Egypt, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia, UAE, ठीक है ना। अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, UAE मेंबर्स बनेंगे सन 2024 में। The first expansion since 10 admission of South Africa into BRICS, and there could be further expansion of membership and creation of new category of partner states. The real bargaining in the BRICS is about whom to admit. Current members appear to have got their special friends in. This is unlikely to make the BRICS more efficient. A large membership will make it harder to produce a purposeful common agenda. If the Johannesburg summit produced a joint statement, a laundry list that ran into 94 paras. Let's leave it for now. The Onion Diktat. Government's move on exports. This article is actually talking about, as we all are aware, that government has imposed a 40% duty on the export of onion, which means that if someone is exporting onion, he has to have a 40% hike on it. The only sole reason for this measure is to discourage export of onion and to keep onion within the domestic market. साथियों, क्योंकि ये थोड़ा सा एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है, जैसे कि अभी ना वर्ल्ड में एल नीनो की वजह से या फिर और घटनाओं की वजह से वेजिटेबल्स वगैरह की सप्लाई में प्रॉब्लम आ रही है, सप्लाई चेन वगैरह बंद चल रही है रशियन यूक्रेन वॉर की वजह से। तो गवर्नमेंट ना अभी जितना स्टॉक है चाह रही है इंडिया में ही रहे, ताकि ज़रूरत पड़ने में हमें भी काम में आए, और अगर हमें भेजना पड़े तब हम तब भेज भी सकें। ठीक है, अब इसका विरोध कैसे हो रहा है? इसमें जो एक्सपोर्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इंडिया का ना जो ग्लोबल मार्केट में ट्रस्ट ख़त्म हो जाएगा लोगों का इंडिया को लेके। जो बायर्स हैं अब उनके माइंड में ये मानसिकता आ रही है, जो इंटरनेशनल बायर्स हैं, कि इंडिया की तो रिजीम जो गवर्नमेंट है ये कभी भी बैन कर देती है, तो इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल सेलर नहीं है, ऐसा एक्सपोर्टर्स कह रहे हैं। और ये लोग विरोध कर रहे हैं कि भैया 40% हाइक करने से हमको नुकसान हो रहा है, कि हमसे कोई ले ही नहीं रहा है, और जो ले रहे हैं मजबूरी में देश, वो आगे के लिए नए सेलर्स को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, नए सेलर्स को ढूंढ रहे हैं। तो ये है आर्टिकल में बात करी गई। Onion growers have reason to be angry about the center imposing a 40% export duty on onions. Farmers of onion, potato and tomato, unlike rice, wheat and sugarcane or even cotton and some pulses, do not benefit from MSP based procurement. ठीक है, not many within the central states much concern them, showed much concern. But when prices of Maharashtra Lasalgaon Mandi cross rupees 20 per kg towards mid-August to 30, and all India retail level, the antennas went up, culminating in the August 19 decision of virtually banning exports. ठीक है, बाकी पढ़ लीजिए, कुछ खास नहीं है, अनियन को लेके है। प्याज की बात रुलाएगी तो है ही, बाकी आर्टिकल कुछ खास नहीं है। पॉलिटिकल आर्टिकल से तो मेरे को जो इम्पोर्टेंट लगे तैयारी के हिसाब से। हिमाचल कुल्लू में फिर से समस्या हो रही है। 8 multi-story building collapse in Kuru district. We have covered these topics in the earlier videos. Okay. Why a Russian militia boss death is being viewed with suspicion. ठीक है,
ट्रिगोजिन, चीफ ऑफ वैगनार ग्रुप एंड फ्रेंड टर्न फोर टू रशिया, इनका समय असैसिनेशन कर दिया गया है, इनका प्लेन गिरा दिया गया है। यही कहा जा रहा है कि प्लेन नॉर्मल क्रैश नहीं हुआ है, इसमें पहले ब्लास्ट हुआ था, मतलब कि इनको मरवाया गया है। ही हैज़ बीन असैसिनेटेड। और ये एक रेबेलियन ग्रुप के रूप में है रशिया में, प्राइवेट आर्मी, जो कि वहाँ पे कॉमन है, ऐसा कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक है, या पढ़ लीजिएगा, इनके ऊपर थोड़ा सा लेख है। इंडियाज़ न्यू कार सेफ्टी रेटिंग, हम जानते हैं कि ग्लोबल एनकैप होता है विश्व में, वैसे इंडिया में अब भारत एनकैप आ रहा है, ग्लोबल एनकैप होता है। ये रेटिंग्स देता है गाड़ियों को। ये क्या करते हैं ना, ये ऑल ओवर वर्ल्ड से या जिस भी कंट्री मैन्युफैक्चर होता है वहाँ से किसी भी शोरूम से रैंडमली कार उठा लेते हैं, जो ग्लोबल एनकैप संस्था है। ठीक है, रैंडमली कार उठाती है और बाद में इसकी टेस्टिंग करती है, क्रैश टेस्ट करती है। और अब यूट्यूब पे देखा होगा आपने कई बार, दीवार पे बहुत तेज़ स्पीड में गाड़ी को मारना। इसमें कोई आदमी नहीं बैठा होता है, इसमें कंप्यूटर्स लगे होते हैं, कंप्यूटर ही काम करते हैं। या गाड़ी को पलट देना, क्रैश टेस्टिंग होती है, साइड से हिटिंग टेस्ट होती है, मतलब गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी टेस्ट चेक करी जाती है और पैसेंजर में कितनी सेफ्टी है। तो ग्लोबल एनकैप रेटिंग ये होता है। अ क्रैश टेस्ट इज अ कोलिजन ऑफ व्हीकल इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट टू एसेस सेफ्टी। प्रॉपर से ये होते हैं, आपके बड़े बड़े हॉल्स होते हैं, गोडाउन्स टाइप होते हैं, जिनमें ये काम होता है। एक लैब होती है रिसर्च करने के लिए, सेंसर्स हर इम्पैक्ट को स्टडी करते हैं, कंप्यूटर्स हर चीज़ को स्टडी करते हैं। द न्यू नॉर्म इन द भारत एनकैप विल कम इन October 1। अब अगर हम लोग भारत रेटिंग को फॉलो करेंगे, भारत एनकैप, हम क्यों यूरो एनकैप करें, हम भारत एनकैप करेंगे। द भारत एनकैप टेस्टिंग प्रोटोकॉल इज अलाइंड विद ग्लोबल क्रैश टेस्ट प्रोटोकॉल्स एंड विल हैव रेटिंग फ्रॉम 1 स्टार टू 5। ठीक है, वैल्यूएशन में क्या होगा, एडल्ट डॉक्यूमेंट। इसमें करने को आसान भाषा में बताऊँ मैं आपको, गाड़ी में ये चेक करा जाता है कि अगर उस समय गाड़ी में एडल्ट बैठे हुए हैं या पीछे बच्चे बैठे हुए हैं, और अगर इन केस कोई एक्सीडेंट होता है साइड से, पीछे से, आगे से या ऊपर से कुछ गिरता है, तो गाड़ी की सेफ्टी का क्या है, एयरबैग कितने हैं, बिल्ड क्वालिटी क्या है, लोहे की क्वालिटी क्या है, जो लोहा उसमें गाड़ी का फ्रेम है, तो ये सब टेस्टिंग में चेक करा जाता है। ठीक है, चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन, फिटमेंट ऑफ सेफ्टी, तमाम चीज़ें हो गई। Why testing matters? Car makers have been shipping model abroad for testing and star grading, an expensive and time-consuming affair. These tests largely covered petrol and diesel cars. भारत एनकैप will also test the rate of CNG cars, मतलब भारत जो एनकैप होगी CNG कार को भी कवर करेगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी टेस्ट करेगी। इन नॉर्म्स could lead to an improvement of quality cars sold in the country. इससे अच्छा अगर अच्छी रेटिंग मिलेगी तो गाड़ियाँ लोग खरीदेंगे और हमें सेफ्टी का पता रहेगा। Global NCAP and India's an exercise to rate cars based on the crash safety first started in the US in 1970s. Similar programs were Euro NCAP, Japan NCAP. हर देश ने आजकल बड़े बड़े देश हैं आपके, ये अपने आप ही रेटिंग निकाल रहे हैं अपनी। भारत NCAP norms are aligned with the format of Global NCAP, which worked with the Ministry of Road and Transport and Highways in the formulating Indian edition of the crash test. बढ़िया है, तो ये हमारा अच्छा है, देश को होना चाहिए खुद का। ये फिर से खबर है जो मैं आपको पहली शेयर कर दी थी कि जापान में क्या है, जो फुकुशियामा रिएक्टर है, ये सन 2011 में जो अर्थक्वेक आए थे उसमें डैमेज भी हुआ था। इसमें हालांकि अभी जो इसके अंदर जितना भी रेडियो एक्टिव पानी कूलिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा था बेसिकली, उसको अब रिलीज़ करा जा रहा है। कहाँ पर रिलीज़ करा जा रहा है, इसको ओशन में रिलीज़ करा जा रहा है। अब हमारे इंस्टाग्राम पे इसकी एक विजुअल इमेज देख सकते हो, और इसका अब विरोध कर रहे हैं लोग। हालांकि ये जो भी रिलीज़ करा जा रहा है, ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था जितने भी हैं, दे आर रिलीजिंग इट आफ्टर दी कन्फर्मेशन फ्रॉम IAEA, द एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन, एंड UN, यूनाइटेड नेशंस, after distilling the water, proper treatment of water, it has assured that the hazard level of water being released in the ocean is the lowest point, is in the lowest point hazard. ठीक है, चाइना ने हालांकि इस समय के लिए सी फूड जो भी जापान साइड से आएगा उसे बैन कर दिया है। बैन मतलब पूरा बैन।
देखिए चाइना ने यहाँ पे, while China customs did not give details on the specific aquatic products impacted by the ban last year, it imported about 600 million euro dollars worth of aquatic products. वैगनर चेफ जो इनका क्रैश हो गया है प्लेन, ब्लास्ट ऑन एयरक्राफ्ट लाइकली ब्रॉट इट डाउन, यूएस ऑफिशियल ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हिसाब से कहा कि पहले ब्लास्ट हुआ है इसमें, ठीक है, इनको असैसिनेट करा गया है। इन्होंने अभी हम जानते हैं कि पिछले ही कुछ समय पहले मिलिट्री कूप करने का प्रयास करा था रशिया में। अगर आप जानते हो कूप का मतलब क्या होता है, सत्ता पलट। ये प्राइवेट मिलिशिया के लीडर हैं, बहुत बड़ी इनकी खुद की प्राइवेट आर्मी है। इन्होंने रशिया की मदद भी करी है यूक्रेन वॉर में लड़ने के लिए, तो क्योंकि ये सरकार के खिलाफ चले गए थे तो अब इनको हटा दिया रास्ते से, ऐसा कहा जा रहा है इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स में। इंडिया यूके जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इसको लेके यहाँ पर आर्टिकल है, इंडिया यूके एफटीए टॉक्स इन फाइनेंशियल। देखिए ये बहुत ज़रूरी है, जो आपकी असल में इंडिया यूके को लेके जो अभी इस समय हम लंदन से बातचीत कर रहे हैं, तो अगर ये डील्स पक्की हो जाती हैं तो ट्रेड के लिए हमें बड़ा फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। इंडिया एंड द यूके आर एक्टिवली डिस्कसिंग बिजनेस मोबिलिटी under the protocol of FTA, and the UK Mr. said, clarifying that overall visas liberalization issues do not come under the ambit of Great Pact. So he said that both countries are working to accommodate issues with regard to bilateral investment treaty. With any negotiation, the hardest bit tends to come at the end. We have closed many chapters. I am working closely with my counterpart, Mr. Piyush Goyal. पीयूष गोयल साहब भी इसको लीड कर रहे हैं। Continued supply side measures essential to prevent spiraling of food supply stock. Supply side measures needed to be continued to check spiraling of food stocks into generalized economy-wide price impulses. RBI Governor Shaktikant Das said in the minutes of the MPC meeting, headline consumer price index base inflation is expected to harden significantly in July-August. The July CPI print, which was released after the RBI policy announcement, rose to 15-month high of 7.44% in July. In the policy decision by MPC, unanimously decided to keep the policy repo rate at 6.5% unchanged. The governor said, "Our task is still not over. While vegetable price shocks are expected to correct quickly with the arrival of fresh crops, there are risks to the food and overall inflation outlook from El Nino conditions." ओवरऑल ये थे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। बाकी अगर आपको लगता है कि कुछ और आर्टिकल्स ज़रूरी हैं तो आप बिल्कुल आर्टिकल्स को खुद से भी रीड करिए। हमारे हिसाब से कम समय में जो आपको एक जल्दी से पेपर का आउटलुक देने का टारगेट था, जो एक जल्दी से कोई व्यू आपको दे सकें हम एक ब्रीफ एनालिसिस में, वो हमने प्रयास करा है। बाकी आज के लिए हम इतने रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।